இராணுவத்தில் பணிபுரியும் போது 2 பிள்ளைகளும் ராவி நதியில் தவறி விழுந்து மரித்து விட்டார்கள். பிறகு அவர் மற்றும் அவர் மனைவி பிள்ளைகள் இழந்த துக்கத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து தரிசனம் கொடுத்து இருவரும் ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் செய்து வரும் சத்திய வேத ஆராய்ச்சி ஊழியம் ஆண்டவருடைய கிருபையால் வல்லமையாக நடைபெற்று வருகிறது. அவர்கள் கொடுக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கரங்களை தட்டி தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. थोड़ा तमिल भी सीखो, तमिल भी सीख लो, तमिल भी सीख लो पूरा अच्छे से, वो आपके लिए काम आएगा, बहुत काम आएगा आपको. हालेलुया हालेलुया. एक ही भाषा में काम नहीं चला सकते हैं. शैतान को और भाषा मालूम है, शैतान को भी बाकी भाषा भी पता है. हालेलुया हालेलुया. அதனால எல்லா பாஷையும் इसलिए सभी भाषा सीखना जरूरी है आपको. हालेलुया. हालेलुया. இப்போது கூட நாம் யுத்த வீரனை குறித்து எடுக்க போகிறோம். अभी हम युद्ध वीर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. முதலாவது நாம் சீசனை குறித்து பார்த்தோம். पहले हमने शिष्य के बारे में पढ़ा. இரண்டாவதாக நாம் ஜாமக்காரனை குறித்து பார்த்தோம். दूसरी बात हमने पैरवे के बारे में पढ़ा. மூன்றாவதாக நாம் யுத்த வீரன். तीसरी बात हम युद्ध वीर के बारे में बात करने वाले हैं. இதுதான் फाइटिंग. ये है क्या बोल सकते हैं, युद्ध. युद्ध मींस युद्ध करना, फाइटिंग फोर्स, झगड़ा करने वाला एक फोर्स. பழைய ஏற்பாட்டிலே யுத்தம் வேறே, पुराने नियम में युद्ध अलग था, புதிய ஏற்பாட்டினுடைய யுத்தம் வேறே. नए नियम का युद्ध अलग है. ஹல்லேலூயா. சிம்சோன் மேலே ஆவியானவர் இருந்தார். शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था. அவன் ஒரு யுத்த வீரனா இருந்தான். वो एक युद्ध वीर था. அவன் சிங்கத்தை கிழித்து போட்டான். उसने एक सिंह को भी अपने हाथों से फाड़ दिया. கரடிகளை கிழித்து போட்டான். उसने भालू को भी फाड़ के फेंक दिया. 300 நரிகளை பிடித்து தீ வைத்தான். 300 लोमड़ियों को पकड़ के पूंछ को आग लगा दिया. அதே அபிஷேகம் நம்மளே இறங்கினா, अगर वही अभिषेक हमारे ऊपर उतरा तो நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும்? हमारी हालत क्या हो जाएगी? அந்த அபிஷேகம் வேற, वो अभिषेक अलग है, இந்த அபிஷேகம் வேற. ये अभिषेक अलग है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதனால தான் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், इसलिए पवित्र आत्मा कहता है புதிய ஏற்பாட்டினுடைய யுத்த வீரர்கள் வேறே. नया नियम का युद्ध अलग है. புதிய ஏற்பாட்டினுடைய யுத்த வீரர்கள் தீங்கை அனுபவிக்கணும். युद्ध नए नियम का युद्ध जो है उसे सहन करना है. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல போர் சேவகனாக, यीशु मसीह के लिए एक अच्छा युद्धवीर बनने के लिए தீங்கை அனுபவின்னு சொல்லியிருக்கிறார். आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा. தீங்கு அனுபவிக்கிறது தான் நல்ல யுத்த வீரன். जो परीक्षा से गुजरता है वो एक अच्छा युद्धवीर. நிந்தையை அனுபவிக்கிறது தான் நல்ல யுத்த आपको வீரன். निंदा को सहना पड़ेगा, वही आप एक अच्छा युद्धवीर बन सकते துன்பத்தை हैं. அனுபவிக்கிறது தான் நல்ல யுத்த வீரன். दुख अगर आप उठाओगे तभी आप अच्छे युद्धवीर बन सकते हो. பாடுகளை அனுபவித்த யுத்த வீரன். जितना आप क्या है, विपत्ति को अपने ऊपर सहोगे आप अच्छे युद्धवीर बन सकते हो. உபத்திரவங்களை அனுபவித்த யுத்த வீரன். जितना आपके ऊपर विपत्ति आती है उतना आपको परमेश्वर युद्धवीर बनाएगा. ஒரு கண்ணத்தில் ஒன்னு அடித்தா அந்த கண்ணத்தை நீ காட்டத்த யுத்த வீரன். एक गाल पे किसी ने मारा तो दूसरे गाल को भी दूसरों को उसको दिखाना है मारने के लिए. அதுதான் யுத்த வீரன். उसको ही कहते हैं युद्धवीर. உங்களை 1 மைல் தொலைவு போக சொன்னா நீங்க 2 மைல் தொலைவு போகணும். अगर किसी ने बोला 1 மைல் दूर 1 किलोमीटर मेरे साथ आना है तो आपको 2 किलोमीटर उसके साथ आगे जाना है. அதுதான் யுத்த வீரன். उसको ही कहते हैं युद्धवीर. அதுக்கு தான் அபிஷேகம். उसको ही उसके लिए अभिषेक है. இயேசு அதை தான் சொன்னார். इसलिए यीशु मसीह ने कहा அப்படி இருக்கிறதான் உண்மையான யுத்த வீரன். जो ऐसे जीवन बिताता है वही एक युद्धवीर है. இயேசு கிறிஸ்து 39 அடிகள் அடித்தாங்க. यीशु मसीह के पीठ के ऊपर 39 कोड़े मारे गए. ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல. उसने एक भी शब्द नहीं बोला. இயேசு கிறிஸ்து முகத்திலே காரி துப்பினார்கள். यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर थूका गया. ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல. उसने एक शब्द भी नहीं बोला. இயேசு கிறிஸ்து தாடி பிடுங்கினார்கள். यीशु मसीह के दाढ़ी को पकड़ के खींच किए. ஒரு வார்த்தை கூட उसने சொல்லல. कुछ भी नहीं बोला. ஆனா நம்ம குண்டு ஊசி எடுத்து நம்மள அப்படி யாரா குத்துனானா உடனே கோபம் வருது. लेकिन यदि किसी ने हमारे को टाचनी पिन से थोड़ा चुबा दिया हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं. அப்படி நம்ம கொம்பு எடுத்து அடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். हम इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अपने सिंग को लेकर उसको मारने दौड़ जाते हैं. உலக மக்கள் செய்யலாம். दुनिया के लोग कर सकते हैं. ஆனா அதை சகிக்கிறது தான் யுத்த வீரன். लेकिन उसको जो सहन करता है वो एक युद्धवीर है. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? कितने लोगों को समझ रहा है? யுத்த வீரன் என்றால் என்ன? युद्धवीर का मतलब क्या है?
தீங்கை அனுபவிக்கிறது. आपको हर एक निराशाओं को कैसे सहना है. ஏன்னா துரைதனங்களையும் அதிகாரிகளையும் நாம் உரிந்து கொள்ள வேண்டும். हमें हर एक अधिकारियों को हर एक जो आकाश मंडल में उसको हमको क्या करना है, निकालना है. பிசாசு கிட்ட அவன்கிட்ட அதிகாரம் இல்லை. शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है. அவன்கிட்ட நீங்க பண்ணின பாவமே இல்லை. उसके पास यहाँ तक कि पाप भी नहीं है. பிசாசு கிட்ட பாவம் இருக்கா? क्या शैतान के पास पाप है? आप बोल सकते हैं? शैतान के पास क्या पाप है? क्या बोलो. उसका नाम पापी है. उसका नाम पापी है, ஆனா அவன்கிட்ட பாप இல்லை. लेकिन उसके पास पाप अंदर नहीं है. बोलो. हैं? என்ன சொல்றாங்க? अवन खुले में पावर. அப்ப இயேசு எதுக்கு வந்தாரு சிலுவைக்கு? फिर यीशु मसीह क्यों आया क्रूस पर? இயேசு எதுக்கு வந்தாரு? किसके लिए आया क्रूस पर? இயேசு எதுக்காக வந்தார் சிலுவைக்கு? क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए आया? बोल सकते हैं आप लोग? किसे छुड़ाने के लिए? பிசாசுடைய கிரிகளை அழிப்பதற்காக தான் இயேசு வந்தார். शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया. அவருடைய பாவங்களை அழிப்பதற்காக வந்தார். उसके पाप उसके सारे पापों के कामों को नष्ट करने के लिए आया. அவங்ககிட்ட இப்போது பாவம் இல்லை. उसके अंदर अभी पाप नहीं है. யாராவது சொல்ல முடியுமா? அப்படி பாவம் அவங்ககிட்ட இருந்தா இயேசுனா அதை அழிக்கலன்னு அர்த்தம். अगर अभी भी उसके अंदर पाप रहता था तो अभी तक यीशु मसीह का जो क्रूस पे मरना है कोई काम का नहीं होता था. அல்லேலூயா. हालेलुया. 1 யோவான் 3:8 வாசிக்கலாம். पहले यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन வாசிங்க. पढ़ेंगे. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப பிசாசு கிட்ட இருந்த பாவத்தை அழிச்சாரா இல்லையா? क्या यीशु मसीह ने शैतान के सब पापों को नाश किया कि नहीं किया? நீங்க சொல்லுங்க இப்போ. अभी आप बताइए. बताइए. शैतान के सारे पापों को यीशु मसीह ने नाश किया या नहीं किया? அப்ப எப்படி அவங்ககிட்ட பாவம் இருக்குதா? फिर उसके पास क्या पाप है? क्या இருக்கா? उसके पास पाप है? क्या நாம் பாப்பே. हम पापी है, ஆனா அவங்ககிட்ட பாவம் இல்லை. लेकिन उसके पास पाप नहीं है. அதை ஆண்டவர் சிலுவையில அறைந்து விட்டார். उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर नाश कर दिया. நம்முடைய பாவத்தை இயேசு என்ன செய்தார்? यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्या किया? அது ஆதாம்ல இருந்து அப்படியே கனெக்ஷன் ஆகி வருது. அந்த பாவத்தை என்ன செய்தார்? वो आदम से जो हमारे डीएनए में जो हमारे खून में आ रहा है उसको यीशु मसीह ने क्या किया? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். कोई बता सकते हैं? क्या किया? वो जो हमारे खून में पाप आ रहा है उसको क्या किया यीशु मसीह ने? और அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு. அவனுடைய பாவத்தை अगर मनुष्य के पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया तो शैतान के पाप को क्या किया? அழிச்சிட்டாரு. उसको नाश कर दिया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அதாவது 100 முட்டை தலைமையில இருந்தது. 100 முட்டை தலைமையில. 100 अंडा सर के ऊपर है. அதை வாங்கி கீழே போட்டாரு. 100 अंडा जो सिर के ऊपर है उसको उठा के नीचे फेंक दिया. பிசாசு தலைமையில 100 முட்டை இருந்தது. शैतान के सिर के ऊपर 100 अंडे थे. அதை தூக்கி கீழே போட்டாரு. उसको पूरे उठा के नीचे फेंक दिया. அந்த முட்டை என்ன ஆயிடுச்சு? वो अंडा क्या हो जाएगा? फूट जाएगा. நம்ம மேல முட்டை இருந்தது. हमारे सर के ऊपर भी अंडा था. அவர் வாங்கி தலைமையில வச்சுக்கினாரு. उसने वो अंडे को अपने सर के ऊपर रख அதை लिया. சிலுவையில அறைஞ்சிட்டாரு. वो लेके क्रूस पर मर गया. அல்லேலூயா. हालेलुया. பிசாசு கிட்ட என்ன இருக்குது? शैतान के पास क्या है? தந்திரம் இருக்கிறது. उसके क्रिया है. வஞ்சகம் இருக்கிறது. उसके हर एक क्या बोल सकते चतुराई है. அவங்ககிட்ட ஏமாற்று குணம் இருக்கிறது. उसके पास क्या बेवकूफ बनाने के लिए या धोखा देने के लिए उसके पास उसकी इच्छा है, सोच है. மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரத்துல मत्ती 4 अध्याय में அவன்கிட்ட உலகத்தின் அதிகாரம் இருந்தது. वहां पे उसके पास संसार का अधिकार है. ஆனா மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे. यीशु ने उनसे उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்து சகல அதிகாரங்களையும் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் அவருக்கு வந்தாச்சு.
जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा जी उठा तो उसके पास सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आ गया। மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரத்துல लेकिन मत्ती 4 अध्याय में பிசாசு வந்து शैतान आकर நான் இந்த உலகத்தை ஃபுல்லா உனக்கு கொடுக்கிறேன், मैं पूरी दुनिया संसार पूरा मैं तुझे देता என்னை हूँ, வணங்குன்னு சொன்னான். मुझे आके दंडवत करके कहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இந்த உலகத்தின் அதிபதி பிசாசு இருந்தான். तभी उस समय 4 अध्याय में शैतान इस संसार का अधिपति था। ஆனா 28ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது लेकिन मत्ती 28 अध्याय में आए तो வானத்திலே பூமியில சகல அதிகாரத்தை இயேசு பிடிக்கிட்டாரு. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने शैतान से छीन लिया। இப்ப பிசாசு கிட்ட சரீரம் இல்ல, अभी शैतान के पास शरीर भी नहीं है, அவங்ககிட்ட வந்து ஆத்மா கிடையாது, பிராணன் கிடையாது. शैतान के पास कोई प्राण भी नहीं है, இப்போ ஒன்லி ஃபார் அவங்ககிட்ட ஆத்மா தான் மட்டும் தான் இருக்குது, सिर्फ उसके बाद आत्मा बचा हुआ है, ஆவி மட்டும் தான் இருக்கிறது. उसके बाद आत्मा ही बचा हुआ है। வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை. पढ़ेंगे एक वचन को, லூக்கா 24 लूका सुसमाचार 24 अध्याय 39 39 वचन। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। நான் தான் என்று அறியும்படி என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள். मैं हूँ जिंदा हूँ करके मेरे हाथ को छूकर मेरे पाँव को छूकर देखो, என்னை தொட்டு பாருங்கள். मुझे अच्छे छू के देखो। நீங்கள் காண்கிறபடி तुम देखने के समान எனக்கு மாம்சம் मेरे पास शरीर भी है, எலும்புகளும் मेरे पास हड्डी भी है, உண்டா இருக்கிறது போல जैसे हड्डी और मांस है ஒரு ஆவிக்கு இராது. आत्मा के लिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப ஆவிகளுக்கு என்ன இருக்காது? आत्मा को क्या नहीं रहेगा? எலும்பும் சரீரமும் இருக்காது. हड्डी और शरीर नहीं रहेगा। அப்ப பிசாசுக்கு இருந்தது முதல்ல. इसके पहले इसका मतलब है शैतान के पास हड्डी और मांस था। அப்ப சிலுவைக்கு போகும்போது जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा, அவர் சரீரத்தையும் எலும்பையும் அவர் பிடுங்கினார். यीशु मसीह ने शैतान के शरीर और हड्डी को छीन लिया। கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। வாசிக்கலாம். कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। ने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। துரைதனைகளையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு अधिकारियों को पूरा उतार कर அதிகாரிகளையும் வல்லமைகளையும் உரிந்து கொண்டார். हर एक अधिकारियों को हर एक प्रधान को पूरा उतार कर। இப்போ உங்க கையில கொஞ்சோண்டு தோல் உரிஞ்சிச்சுனா நீ என்ன பண்ணுவீங்க? आपके शरीर में समझिए, उससे अच्छा बता रहा हूं मैं, आपके शरीर में अगर आपका चमड़ा छिल गया तो क्या हो जाएगा? நீங்க கீழே விழுந்தீங்க, தோல் போயிடுச்சு. आप नीचे गिर गए और आपका चमड़ा छिल गया तो क्या होगा? जोर से हड्डी और मांस दिखेगा। நீ வலிக்குது வலிக்குன்னு சொல்லி நிப்ப. आप बोलोगे मुझे दर्द दे रहा है, मुझे दर्द दे रहा है, रोते रहोगे ஏன்னா கொஞ்சம் தோல் போயிருக்குது. क्योंकि आपके ऊपर क्या है? चमड़ा निकल गया। ஆனா முழு தோல் போனா எப்படி இருக்கும்? अगर आपका पूरा चमड़ा निकाल दिए तो क्या हो जाएगा? போய் எங்கனா தண்ணி குடிக்க முடியுமா? क्या आप जाके पानी पी सकते हो? कहीं जाके எங்கனா போய் ரெஸ்ட் எடுக்க முடியுமா? आप कहीं जाके सो सकते हो क्या? எரிதேறி ஓடினே இருப்ப. आप ये रोते रोते दौड़ते जाओगे, क्या है मेरा चमड़ा निकल गया करके। பிசாசு எரிதேறி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். शैतान अभी भी वैसे दौड़ते रहता है, அவனுக்கு இடமே இல்ல. उसको जगह ही नहीं मिल रही है अभी भी। உட்கார்ந்து சீட் எடுத்துட்டாரு. वो परमेश्वर ने उसके हर एक सीट को उखाड़ के फेंक दिया। ஏன்னா சரீரம் இருந்தா தான் உட்கார முடியும். शरीर रहेगा तभी वो बैठ सकता है, சரீரம் இருந்தா தான் எதனா மரத்துல போய் நிக்க முடியும். कहीं शरीर रहेगा तब जाके वो खड़ा हो सकता है। சரீரம் இல்ல, अगर शरीर नहीं है, எலும்பும் இல்ல, हड्डी भी नहीं है, ஆவிதான் இருக்கிறது. आत्मा है, அது பறந்துகிட்டே இருக்குது. बस वो आत्मा ऐसे उड़ते रहता है। தெரியுமா உங்களுக்கு? हमको पता है அசுத்த ஆவிகளுக்கு சரீரம் இல்லை, अशुद्ध आत्मा को शरीर नहीं है, எலும்புகள் இல்லை. उनको हड्डी नहीं है। நான் சொல்லல, मैंने नहीं कहा है, இயேசு சொன்னாரு. यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है। எத்தனை பேர் कितने விசுவாசிக்கிறீங்க? लोग विश्वास कर रहे हैं? அப்ப மரித்து உயிர்த்த அந்த சரீரத்துக்கு जो जी उठा शरीर को நம்ம மரித்த பிறகு हम मरने के बाद நம்ம உடனே உயிரோடு எழுந்துப்போம். हम तुरंत जी उठेंगे। அப்போது நமக்கு எலும்பு இருக்கும், சரீரமா இருக்கும். हमारे जब जी उठेंगे, हम जब जी उठेंगे तो हमारा शरीर भी रहेगा, हमारा हड्डी भी रहेगा। ஆனா மாம்ச சரீரம் கீழே டெட் பாடியா இருக்குது. लेकिन वो जो शरीर जो है मरा हुआ शरीर नीचे पड़ा रहेगा। ஆனா ஆவிக்குரிய சரீரத்துல உடனே எலும்பு மாம்சம் எல்லாம் உண்டாயிடும். लेकिन आत्मिक जीवन में जब हम जीवित होंगे तो हमारी हड्डी और नया शरीर हमको ஒரு मिलेगा। சரீரம் உருவாகுவதற்கு एक शरीर नया बनने के लिए, ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட், एक शरीर नया बनने के लिए 1 मिनट 1 सेकंड लगता है। ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரம் உண்டாகிறதுக்கு एक आत्मिक शरीर बनने के लिए
அதை வசனத்தை வாசிக்கலாம். एक वचन पढ़ेंगे हम लोग. 1 கொரிந்தியர் 15:58. पहला कोरिन्थियो उसका 15 अध्याय उसका 58 वचन. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे. आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். अभी मैं तुम्हें भेद की बातें कहता हूँ. நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. हम सब तो नहीं सोएंगे ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் பொழுது परंतु सब बदल जाएंगे. ஒரு நிமிஷம், अगले वचन में लिखा है एक क्षण के भर में, ஒரு இமைப்பொழுதில் एक पलक मारते ही நாம் எல்லாரும் மறுரூபாயிடுவோம். हम तुरंत फूकते ही बदल जाएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு மறுரூப சாயல் ஆவறதுக்கு 1 மினிட் 1 செகண்ட். वहां पे अच्छे से लिखा हुआ 52 वचन में लिखा है एक क्षण भर और एक पलक. इसका எத்தனை பேர் मतलब விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं? தேவன் அப்படி ஒரு சரீரத்தை நமக்கு உண்டாக்கி தருகிறார். परमेश्वर ऐसे शरीर को हमको उत्पन्न करके देने वाला है. அந்த சரீரம் தான் ஆவிக்குரிய சரீரம். वही जो शरीर है वही आत्मिक शरीर है. ஆனா பிசாசுகிட்ட அதிகாரம் இல்லை. लेकिन शैतान के पास अधिकार नहीं है. அவர் துரைதனங்களையும் उसके सारे अधिकारों को, அதிகாரங்களையும் सारे प्रधानताओं को அவர் உரிந்து கொண்டார். यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा निकाल दिया. ஒன்லி ஃபார் அவங்ககிட்ட வந்து ஒரே ஆத்மா தான் இருக்கிறது. बस उसके बाद आत्मा बचा हुआ है. அதை வச்சு தான் நம்ம துரத்துகிறோம். बस उसको रख के हम क्या भगा रहे हैं. அது வந்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே போக முடியும். वो आत्मा मनुष्य के अंदर भी जा सकता है. ஒரே டைம்ல ஒரு 6000 பிசாசும் உள்ள போக முடியும். एक ही समय में 6000 आत्मा एक मनुष्य के अंदर जा सकता है. ஏன்னா அந்த இருதயத்துல क्योंकि वो हृदय में தாங்கக்கூடிய வல்லமை இருக்குது. उतना ताकत है कि 6000 आत्मा वो हृदय के अंदर जा सकता है. நம்முடைய இருதயத்துல हमारे हृदय के अंदर 6000 பிசாசு போய் தங்க முடியும். 6000 दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आके बस सकता है. எத்தனை பேருக்கு தெரியாது? कितने लोगों को पता नहीं है? ஒரு மனுஷனுக்குள்ள एक मनुष्य के अंदर அவனுக்குள்ள 6000 பிசாசு இருந்தது. 6000 क्या है? दुष्ट आत्मा था. ஒரு லேகியோன். एक लीजियन करके लिखा हुआ है. அவனுக்குள்ள அவன் வீட்ல யாரும் கட்டவும் முடியல. उसके घर में कोई उसको बांध ही नहीं पाया. அவன் எல்லாத்தையும் கைட்டு போயினே இருக்கிறான். वो सब जो भी उसे बांधते थे सांगलों से तोड़ तोड़ कर चले जाता था. கடைசில போய் கல்லறையில போய் இருக்கிறான். फिर கல்லறையில उसके बाद वो कब्रिस्तान में आके रहता था. அங்க இயேசு போறாரு. वहां पे यीशु चले गया. அப்ப அந்த பிசாசு சொல்லுது, वो वहां पे शैतान बोलता என்னை है, வேதனைப்படுத்த இங்க வந்தாயின்னு கேக்குது. क्या मुझे सताने के लिए तू इधर आया है? இயேசு பார்த்த பிறகு வேதனை உண்டாகுதா அதுக்கு. यीशु मसीह को देखते पर अब उसको क्या है? सतावाना शुरू ஆனா होता ஒரு है. மனுஷனை அவன் வேதனைப்படுத்தினது அது தெரியல அதுக்கு. उसको ये नहीं पता है कि वो 6000 दुष्ट आत्मा एक मनुष्य को सता रहा है करके. பாருங்க, ஒரு 6000 பிசாசு ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்குது. एक 6000 दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर है. ஆனா அந்த பிசாசு சொல்லுது, लेकिन वो दुष्ट आत्मा बोलता எங்களை है, எப்படியாவது பன்றிக்குள்ள அனுப்பிடுங்க. हमको कैसे भी इससे बाहर निकाल दीजिए. அங்க 2000 பண்ணி இருந்தது. वहां पे इस शहर से बाहर निकाल, क्योंकि वहां पे 2000 क्या है? எத்தனை பண்ணி सुअर இருந்தது? है. எத்தனை பண்ணி இருந்தது? कितने सुअर थे? 2000. அப்ப 6000 பிசாசு எடுத்து 2000 பண்ணிகளை விட்டாரு. 6000 दुष्टात्मा निकाल के 2000 क्या है? सुअरों के अंदर यीशु मसीह ने भेज அப்ப दिया. ஒரு பன்றிக்குள்ள எத்தனை ஆவி போச்சு? तो फिर एक सुअर के अंदर कितने दुष्टात्मा गए होंगे? 3 दुष्टात्मा. एक सुअर के अंदर कितने दुष्टात्मा गए होंगे? 3 ஆவி உள்ள போன பிறகு 3 दुष्टात्मा एक सुअर के अंदर जाने के बाद பண்ணி போய் செத்துருது. जो सुअर 3 सुअर के अंदर 3 आत्मा गए, वो सुअर पलट पलट के डायरेक्ट समुद्र में जाके गिर गए, मर ஆனா गए. 6000 பிசாசு ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருந்து மனுஷன் சாகல. लेकिन 6000 दुष्टात्मा जब मनुष्य के अंदर था, हृदय के अंदर था, तब मनुष्य नहीं मरा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப அந்த வல்லமை உள்ள இருக்கிறதே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். इसका मतलब है हृदय के अंदर परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दिया है कि हम 6000 आत्मा को भी हमारे अंदर रख இங்க सकते हैं. உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்கள நிறைய பேருக்கு பிசாசு போயிடுச்சு. यहाँ पे जितने लोग बैठे थे, बहुत सारे लोगों के अंदर से दुष्टात्मा चले गया. ஆனா பிசாசு கிரியை உள்ள உட்கார்ந்து இருக்குது. लेकिन शैतान के क्रिया आपके अंदर है. அதை எப்படி எடுக்கிறது? आप उसको कैसे निकालेंगे फिर? கோபம் பிசாசின் கிரியை. दुष्ट क्या है? गुस्सा பெருமை शैतान का क्रिया है. பெருமை பிசாசின் கிரியை. घमंड शैतान का क्रिया है. மேட்டுமை பிசாசின் கிரியை. और उसके बाद क्या है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना एक क्रिया है. இச்சை பிசாசின் கிரியை. अभिलाषा एक क्या है? क्रिया है शैतान की. பண ஆசை பிசாசின் கிரியை. पैसों का लालच शैतान का एक क्रिया है. உலக ஆசை பிசாசின் கிரியை. पूरे दुनिया की आशा अभिलाषा एक शैतान की क्रिया है. அதை வெளியே கொண்டு வரணும். उसको आपके शरीर से बाहर लेके आना है. அதுதான் ஆவின் பட்டை யுத்த வீரன் கிட்ட இருக்குது. इसलिए ये इधर लिखा हुआ युद्ध वीर करके दिखाया है. அந்த ஆவின் பட்டயத்தை அனுப்பணும். वो जो उसके हाथ में जो तलवार है उसको आपको लेना है. அது கொண்டு போய் ஆபரேஷன் பண்ணணும். उसको लेके जाके आपको ऑपरेशन करना है. ஆவின் பட்டயம் தேவனுடைய வசனம். इसका मतलब है उसके पास
पास जो तलवार है परमेश्वर का वचन है, அந்த வசனம் தான் உள்ள போகணும். वो वचन आपके अंदर कार्य करना है. அது உள்ள போய் जब वो अंदर जाता है பெருமையின் கிரியை அழிக்கும். घमंड की क्रिया को नाश करेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. யூதாஸ்குள்ள ஒரு கிரியை இருந்தது. यूदास इस्करियोत के अंदर एक क्रिया था शैतान का. பிசாசு இல்ல, शैतान नहीं था, ஆனா பண ஆசை இருந்தது. लेकिन पैसों का लालच था. அப்போ அவன் திருவிந்து எடுக்கும்போது जब वो मेज में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ मेज ले रहा था, அப்போ இயேசு சொன்னாரு, तब यीशु मसीह ने कहा இந்த ஆவி யூதாஸ்குள்ள போகுன்னு சொன்னாரு. ये आत्मा यूदास इस्करियोत के अंदर चले जा. அப்போ உடனே உள்ள போயாச்சு யூதாஸ்குள்ள. तुरंत दुष्ट आत्मा यूदास इस्करियोत के अंदर चले गए. ஆனா யூதாஸ்குள்ள பண ஆசை இருந்தது. लेकिन तभी भी यूदास इस्करियोत के अंदर क्या था? पैसों का लालच था. அப்போ ஆவி உள்ள போல. तभी क्या है? दुष्ट आत्मा अंदर नहीं गया था. ஆனா ஆண்டவர் சொன்னாரு, திருவிந்து யார் எடுக்கறாங்களோ அவங்களுக்குள்ள போகன்னாரு. यीशु मसीह ने जब कहा मेज के समय रोटी लिया और पानी में डुबोकर कहा कि यूदास इस्करियोत के अंदर चले जा. அப்போ உடனே பிசாசின் ஆவி உள்ள போயிடுச்சு. तुरंत शैतान की आत्मा यूदास इस्करियोत के अंदर चले गया. அப்ப இயேசு சொன்னாரு, என்னை காட்டிக்கொண்டா நீ காட்டிக்கொடுன்ட்டாரு. तब यीशु मसीह ने कहा तुझे अगर मुझे क्या करना है, पकड़वा देना है तो मुझे पकड़वा दे, சீக்கிரமா செய்யினாரு. जल्दी कर ले. அப்போ முதல் சுபாவத்தை அடிக்கலனா அது அசுத்தாய் உள்ள வந்துனே இருக்கும். यदि आपने उस स्वभाव को, शैतान के स्वभाव को नाश नहीं किया आपके अंदर से, तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर आते रहेगा बार ஒரு बार. ஒரு பாஸ்டர் அம்மா एक पास्टर अम्मा மீட்டிங் நடத்துனாங்க. एक बहुत बड़ी मीटिंग लिए उन्होंने, ஸ்டேஜ்ல நிக்கறாங்க. स्टेज में खड़े हो गए. இப்போ ஊழியக்காரர் வந்துட்டாரு. अभी परमेश्वर का दास आ गए. மெசேஜ் கொடுக்க போறாரு. अब वो परमेश्वर का संदेश देने वाले हैं. முதல் பிசாசு ஓடணும். पहले शैतान को भगाना है. அதுக்காக அவர் ஆராதனை பண்றாரு. वो आराधना, वो पास्टर जी आराधना कर रहे थे. ஆனா முதல் யாருக்குள்ள இருந்தது? பிசாசு பாஸ்டர்மங்கள தான் இருந்தது. पता है वो दुष्ट आत्मा सबसे पहले किसके अंदर था? पास्टर जी के पत्नी के अंदर था. பாஸ்டர்மா மேடையிலே ஆடுறாங்க. ये स्टेज के ऊपर ही उनकी पत्नी क्या है, घूमना शुरू कर दी. எப்படி இருக்கும்? कैसा लगेगा सबको? ஆவி உள்ள இருக்குது. आत्मा, दुष्ट आत्मा उनकी पत्नी के अंदर है. அதை எடுக்கணும்னா उसको अगर नहीं निकालेंगे, தேவனுடைய அக்னி வார்த்தை உள்ள போகணும். परमेश्वर का उसको निकालना है, परमेश्वर का आग और परमेश्वर का वचन अंदर जाना है. உள்ள போனாதான் இழுதை கொடுத்துட்டு எரியும். जब आग अंदर जाएगा तो वो दुष्ट आत्मा को जला देगा. ஒரு நல்ல யுத்த வீரன் एक अच्छा युद्धवीर நல்ல வசனத்தின் மேல பசிதாக உள்ளவனா இருக்கணும். बहुत परमेश्वर के वचन के बहुत भूखा और प्यासा रहेगा. அது மேல பசிதாக இருக்கணும். बहुत भूखा और प्यासा रहेगा. வசனத்தை நல்ல மேய்ந்து கொள்ளணும். परमेश्वर के वचन को अच्छी से अंदर ले लेगा. சங்கீதம் 37:3 வாசித்து பாருங்க. भजन संहिता 37वां अध्याय उसका 3रा वचन. यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह. आमीन. கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய். परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख. தேசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள். वहां पे लिखा है सत्य को जानने करके लिखा हुआ. சத்தியத்தை மேய வேண்டும். आपको सत्य को जानना जरूरी है. உங்களுக்கு ஒரு மாடை போல சத்தியத்தை மேயணும். நம்ம वहां पे लिखा है सच्चाई में मन लगाए. எப்படி மாடு புல்ல மேயுதோ जैसे गाय क्या है, घास को खाती है, அதே போல சத்தியத்தை நல்ல மேயணும். वैसी आपको सच्चाई को अच्छी से मन लगाकर खाना है. அப்படி சத்தியம் உள்ள போனாதான் जब वो सत्य परमेश्वर का वचन अंदर जाएगा, நமக்குள்ள இருக்கிற சுபாவம் அடியும். हमारे अंदर के हर एक स्वभाव जो शैतानी स्वभाव है मिट जाएंगे. பிசாசுக்கு ஒரு குணம் இருக்குது. शैतान के पास एक गुण है, அவன் தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பான். आपको क्या बोल सकते, चिढ़ा कर आपको क्या करेगा, आग लगाए, चिंगारी लगाकर आग लगाएगा. அந்த வேலை அவன் செய்வான். उसको अच्छे से आता है. वो அவன் என்ன செய்யறானா தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பான். पहले क्या है, छेड़ देगा और फिर देखते रहेगा आपको. அதனால தான் நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும். इसलिए बहुत ही आपको सावधानी से रहना है. ஏன்னா தேவனுடைய பிள்ளைகள் क्योंकि परमेश्वर के लोग 3 காரியத்தை தான் வளர முடியும். 3 बातों में बढ़ सकते हैं. ஒன்று வசனம், पहली बात वचन में, ஜெபம், दूसरी बात प्रार्थना में, மூன்றாவது தேவ சமூகத்துல அபிஷேகம். तीसरी बात परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसके अभिषेक को प्राप्त இது करना. மூன்று உங்களுக்குள்ள வந்தாதான் ये तीनों आपके अंदर आया तो நீங்கள் பலப்பட முடியும். आप अच्छे से बल पाड़ सकते हैं. பிசாசு குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. शैतान के बातों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. அங்க இயேசு நாமம் இருக்கணும். वहां पे यीशु का नाम रहना அது जरूरी है. போயிடும். वो निकल जाएगा. ஆனா பிசாசு கிரிகள் உள்ள இருக்குதான்னு பார்க்கணும். लेकिन आपको ये भी देखना है शैतान की क्रिया आपके अंदर है क्या. ஏதாவது இருந்தா यदि थोड़ा सा भी है तो அதை எடுப்பதற்காக उसको निकालने के लिए நீங்கள் வசனத்தை உள்ள போடணும். आपको वचन को आपके अंदर डालना है. அந்த வசனம் போட்டாதான் அதை எடுக்க முடியும். जब आप वचन को अंदर जाएगा तब वो चीजें आपके अंदर, वो स्वभाव जो बुराई का स्वभाव आपके अंदर से निकल जाएगा. ஏன்னா அவன் வஞ்சிக்கிறவன். क्योंकि आपको धोखा देने वाला है.
மத்த அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரத்துல प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, அங்க ரெண்டு பேர் வஞ்சிக்கப்படுறாங்க. वहां पे दो लोगों ने धोखा खाया। அனானியா சப்பீரா ரெண்டு பேர் வஞ்சிக்கப்படுறாங்க. उनका नाम है हनन्याह सफीरा ने, दो जनों ने धोखा खाया। ரெண்டு பேருமே சபையில் தான் இருந்தாங்க. वो दोनों कलीसिया में तो रहते थे, கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து மிச்சம் வைத்தாங்க. थोड़ा सा पैसा निकाल के, धन निकाल के अपने लिए अलग करके रख பேதுரு दिए। கேட்கிறார் எவ்வளவு தான் விட்டுறீங்கன்னு. लेकिन पतरस ने कहा कितने की तुम बेच रहे हो? ரெண்டு பேருமே போய் சொன்னாங்க. दोनों ने झूठ बोला। அவங்க முதல் சர்வீஸ்ல पहली आराधना में அனானியா வந்தாரு. अनन्या उनके पति आए, எவ்வளவுக்கு விற்றேன்னு கேட்டாரு. पतरस ने कहा तूने अपने जगह को कितने में बेचा? அவன் பரிசுத்தாவிடத்தில் போய் சொன்னான். उसने पवित्र आत्मा के पास झूठ बोला, உடனே விழுந்து செத்துட்டான். तुरंत वहीं पे मर गया। சரியாக 3 மணி நேரம் ஆச்சு. ठीक 3 घंटे के ஒரு बाद, சர்வீஸ்க்கு 3 மணி நேரம். एक आराधना के 3 घंटा, அடுத்த சர்வீஸ்க்கு அம்மா வராங்க. दूसरे आराधना में क्या है, सफेरा आ रही है, उनकी पत्नी आ அவங்க रही है। ரெண்டு பேரும் பேசிக்கினாங்க. वो दोनों ने बात घर पे बात करके நான் आए, ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு போறேன், मैं पहली आराधना में जाऊंगा, நீ செகண்ட் சர்வீஸ்க்கு तो வா. दूसरी आराधना में आना। நம்மள யாராவது கேட்டா கூட நம்ம மறைச்சிடலாம்னாங்க. अगर हमने किसी ने हमसे पूछा हम छुपा लेंगे बराबर। புருஷன் செத்ததே மனைவிக்கு தெரியல. उनका पति मर गया, पत्नी को नहीं पता, ஒரு பொய் தான் சொன்னாங்க. लेकिन एक ही झूठ बोला। காலங்கள்ல நம்ம மிக ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். इस समय में हमें बहुत ही सावधानी से रहना है। சாத்தான் வந்து शैतान தந்திரமுள்ளவன். बहुत ही चतुराई से काम करता है। ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்துல முதல் தந்திரமுள்ளவனா இருந்தான். उत्पत्ति 3 अध्याय में बहुत चतुराई से, चालाकी से आया। எபேசர் 6ஆம் அதிகாரத்துல அவன் தந்திரமுள்ளவன். इफिसी 6वां अध्याय में भी वो बहुत ही चालाकी रूप से आता है। அவன் தந்திரத்தினால் அதுல வந்து தந்திரன்றது பாவம் இல்ல. उसकी चालाकी पाप नहीं है। தந்திரம் பாவமா? उसकी क्या चतुराई पाप है क्या? தந்திரம் பாவமா? क्या चतुराई पाप है क्या? தந்திரம்ன்றது பாவமான்னு கேக்குறேன். चतुराई रहना पाप है क्या? நீங்க சொல்லுங்க யாராவது. आप बताइए, चतुराई रहना पाप है क्या? ஆனா தந்திரம் அவன் என்ன பண்றான்? வசனத்தை திருப்பி பேசுவான். वो क्या करता है? चतुराई के साथ वचन को क्या है, उल्टा घुमा के बात करता है आपसे। இந்த கனியை நீ புசித்தால் சாவே மாட்டேன்னு उसने சொல்லுவான். कहा कि ये फल तुम खाओगे तो मरोगे ही नहीं। அப்படி ஒரு விதை போட்டுறான். सिर्फ वो बीज को पलटा के डाल देता है। நீங்க காணி கொடுக்கலாம் கூட பரவாயில்ல, आप परमेश्वर को भेंट नहीं देंगे तो भी चलेगा, தசமா கொடுக்கலாம் கூட பரவாயில்ல, आप दशमांश नहीं देंगे तो भी चलेगा, நீங்க எப்போதும் சபைக்கு போய் நேக்கலாம். आप कभी भी आराधना में जा सकते हो। பாஸ் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாரு. पास आपके पास से कुछ नहीं बोलेंगे, அப்படின்னு அவன் சொல்றான். वैसे ऐसे घुमा के बोल देंगे। அதுக்கு பார்த்தா தந்திரம். उसको बोलते हैं चालाकी, चतुराई। ஏன்னா நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது. क्योंकि अगर आपने वैसा कर दिया आपको आशीष नहीं मिलेंगे। ஏன்னா நீ கர்த்தர் கொடுத்தாதான் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है आप अगर दोगे तभी परमेश्वर आपको देगा। நீங்க எவ்வளவு கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு அமைக்கு குழி கொடுப்பாரு. जितना आप दोगे परमेश्वर उसको दबा दबा के हिलाया लगा आपकी गोद में ஆனா डालेगा। அவன் மறைப்பான். लेकिन शैतान क्या करेगा, उसको छुपा देगा। தந்திரம் உள்ளவன். बहुत ही चतुराई से काम ரெண்டாவது करेगा। வஞ்சிக்கிறவன். दूसरी बात धोखा देने वाला है। ஒரு வார்த்தையை 100 முறை சொல்லுவான். वो ऐसे बताएगा कि एक बातों को 100 के समान दिखाएगा आपको। நீங்க நிச்சயமா வாங்க, आप आइए, அந்த கடைக்கு வாங்க, கடைக்கு கூடுவான். वो आपको बोलेगा दुकान चलो, உனக்கு 100 ரூபாய் பொருளை 50 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன்னுவான். वो बोलेगा 100 रुपए की चीज मैं 50 रुपए में देता हूँ। நீங்க போய் அந்த 50 ரூபாய்க்கு போவீங்க, आप 50 रुपए के चक्कर में जाओगे, 50,000 செலவு பண்ணுவீங்க. वहां पे 50,000 उसके चक्कर 50,000 और खर्च कर அவன் दोगे। மாட்டி விட்டுருவான். वो आपको क्या कर देगा, फंसा देगा। ஏன்னா அவன் தந்திரம் உள்ளவன், வஞ்சிக்கிறவன். क्योंकि वो चतुराई से धोखा देने वाला है। அதனால சாத்தான் வந்து எப்பவும் வஞ்சிக்கிற வேலையை செய்து கொண்டே இருப்பான். इसलिए शैतान बहुत ही क्या है, धोखा देने वाला है। அதனால தான் அவன் வஞ்சிக்கப்பட்டான், ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டாங்க. इसलिए क्या है, बहुत से लोगों को धोखा दिया उसने। ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படல, आदम को उसने धोखा नहीं दिया, ஆனா ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டாங்க. लेकिन हवा को उसने धोखा दिया। அவ்வளவு அழகா பேசுவான். बहुत अच्छी से बातें करेंगे। நீங்க வசனம் தெரிஞ்சாதான் அதை மேற்கொள்ள முடியும். अगर आपको वचन पता है तभी आप उसको क्या है, जीत सकते हो। உங்களுக்கு வசனத்தில் ஆழத்திலே நீங்க போடணும் வலையை. आपको अपने जाल को वचन की गहराई में डालना है, அப்பதான் உங்களுக்கு தெளிவான எண்ணங்கள் வரும். तभी आपको अच्छी से क्या है, सोच विचार आ सकते हैं। பிசாசு யாரு? शैतान कौन है? அவன் தந்திரம் உள்ளவன், वो बहुत ही चालाक है, அவன் வஞ்சிக்கிறவன் உள்ளவன், वो धोखा देने वाला है, ஏமாற்றுகிறவன். वो आपको धोखा गुमराह करने वाला है। உங்களை எப்படியாவது அதுக்குள்ள கொண்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான். आपको किसी भी तरह उस जगह पे लेके आने की कोशिश करेगा। ஒரு நாரில் வந்து ரோட்ல விழுந்து கிடக்குது. एक कुत्ता अगर कहीं रोड पे पड़ा है, அதை பார்த்தவர்கள் உடனே எடுத்துக்கினாங்க.
और उसको उठा தெரிஞ்சவளா இருக்கணும், अच्छा बाइबल को जानने वाला நல்லா व्यक्ति चाहिए। ஜெபிக்கிறவளா இருக்கணும், अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति அவங்களோட चाहिए। நீங்க கனெக்ஷன் வைக்கணும், आपको उनके साथ संगति करना है। அவங்களோட நீங்க ஐக்கியம் வச்சீங்கன்னா आप उनके साथ संगति करेंगे तो அப்ப நீங்க வளருவீங்க. आप फिर बढ़ोगे। நீங்க வசனமே தெரியாதவங்கிட்ட உட்கார்ந்திருந்தா, अगर आप बिना वचन के बैठे होंगे तो அவங்க ஜெபம் இல்லாத ஒரு மனுஷங்கிட்ட உட்கார்ந்தா आप अगर बिना प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास बैठोगे तो உங்களிடத்துல இருக்கிற பலவீனமா ஆயிடுவீங்க, आपके पास जो सामर्थ है ना वो भी सामर्थहीन हो जाएगा, चले जाएगा, நீங்கள் எம்டி ஆயிடுவீங்க. आप खाली हो जाओगे। பாவம் உள்ள வரதுக்கு சான்ஸ் வருது. पाप आपके अंदर आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। பிசாசுகிட்ட பாவம் இல்லனாலும் शैतान के पास पाप नहीं रहने के बाद भी ஆனா உலகத்துல பாவம் இருக்குது. लेकिन संसार में पाप है, ரட்சிக்கப்படாத மக்கள் இருக்கிறாங்க, अन्य जाति लोग है। அவங்களோட கனெக்ஷன் போடுறது தான் பிசாசோட வேலை. आप शैतान का ये काम है अन्य जाति के साथ आपको संगति में बैठा देना। அவனால புதிய ஒரு பாவத்தை புகுத்த முடியாது, शैतान अपने अंदर से पाप आपके अंदर नहीं डाल ஒரு सकता। புதிய பாவத்தை கிரியேஷன் பண்ண முடியாது. पाप शैतान आपके अंदर से अपने अंदर से पाप को उत्पन्न नहीं कर सकता आपके அதனால தான் जीवन 1 में। யோவான் 3:8 தெளிவா சொல்லிட்டாரு, इसलिए पहले है ना 3 अध्याय 8 वचन में अच्छे से यीशु मसीह பிசாசின் का கிரிகளை அழிக்கும்படிக்கு. शैतान के कामों को नाश करने के लिए வாஸ்து பாருங்க, फिर से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन। तो कोई पाप करता है हाँ वह शैतान की ओर से है, हाँ क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि आ- ए- शैतान के कामों का नाश करे। சாத்தானுடைய பாவனை என்ன, காமனை என்ன, शैतान के काम का मतलब क्या அத है? போட்டுக்குது பாருங்க. वहाँ पे अच्छे से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। அதுல என்ன போட்டுருக்குது, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? சைத்தான் का काम. शैतान के काम। சைத்தான் का कामना என்ன, शैतान के काम मतलब क्या है? सैतान का काम. शैतान का काम का मतलब क्या है? अभी पढ़ा था ना आप लोग, हाँ? सैतान का काम क्या है? शैतान का काम क्या है? சைத்தான காம் வந்து பாவம் தான் சைத்தான காம். पाप भी शैतान का काम है। அதை தான் அவன் எல்லாத்துக்கும் புகுத்தணும். वो क्या करेगा? उस शैतान के कामों को क्या करेगा? आपके अंदर डालने की कोशिश அதை करेगा। தான் இயேசு அழிச்சாரு. उसको यीशु मसीह ने नाश कर दिया। இயேசு அதுக்கு தான் வந்தாரு. यीशु मसीह उसी के लिए आया। நீங்க ஒரு போலீஸ்க்கு अगर आप एक पुलिस के पास அவர் தவறு செய்தாரு, एक पुलिस गलती कर लिया, அவர் இன்ஸ்பெக்டர். वो एक इंस्पेक्टर है, ஆனா உங்களுக்கு தெரியாத, அந்த ஊருக்கு தெரியாத, அவருக்கு ஸ்டார் எடுத்துட்டாங்க. लेकिन आपको भी नहीं पता, पूरे बस्ती को भी नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर से स्टार, उसके ऊपर जो स्टार रहता है उसको निकाल दिए। மறுபடியும் அந்த போலீஸ் அந்த ஊருக்கு போறாரு. फिर से वो पुलिस वाला कहाँ पे आ रहा है? उस गांव में फिर से जा रहा है। அங்க இருக்கிற திருடர்கள் அவரை பார்த்து பயப்படுவாங்களா, பயப்பட மாட்டாங்களா? क्या चोर लोग उसको देखकर क्या डरेंगे या ना डरेंगे? आप बताइए। ஏன்னா அவருக்கு ஸ்டார் ஏத்தது திருடனுக்கு தெரியாது. क्योंकि उसके ऊपर से स्टार निकाला हुआ चोर लोगों को नहीं पता है, அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், பயப்படுவான். इसलिए वो क्या करेंगे? डरेंगे। அதே போலதான் वैसे ही நம்முடைய சபையில உட்கார்ந்து இருக்கிற விசுவாசிகள் हमारे कलीसिया में बैठे हुए लोग भी வசனத்தை சரியா அறியாதனால वचन अच्छे जानने नहीं कर உங்க रहा है। பிசாசு கிட்ட பாவம் இருக்குது, शैतान के पास पाप है, வல்லம் இருக்குது, उसके पास सामर्थ அவன் है, அதை பண்றான் இதை பண்றான், वो ये करता है वो करता है। அவனை மேல தூக்கினே போறாங்க மேல. शैतान को क्या करते हैं? ऊंचा उठाते रहते, ऊंचा उठाते रहते। அப்ப அவன் பிசாசு என்ன பண்றான், ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொல்றான். शैतान क्या करता है पता है? परमेश्वर के पास जाके बोलता है। அவன் என்ன சொல்றானா, वो क्या बोलता है पता है? சபையில कलीसिया में 20 வருஷம் 30 வருஷம் ஆலயத்துக்கு வந்தாலும் 20-30 वर्ष कलीसिया में आने के बाद அவங்களுக்கு भी யாருக்குமே வசனம் தெரியாது. किसी को भी वचन नहीं पता है, அதனாலதான் பிசாசு கிட்ட வல்லம் இருக்குதுன்றாங்க, इसलिए बोलते हैं कि क्या शैतान के पास सामर्थ है करके, பாவம் இருக்குதுன்றாங்க. पाप है करके बोलते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க யோசித்து பாருங்க, आप सोच के देख लीजिए, நீங்களே அவனுக்கு வல்லமை கொடுக்குறீங்க. आप खुद होकर क्या दे रहे हो? शैतान को सामर्थ दे रहे हो। அவன் பாவம் பாவம் பாவி பாவின்னு சொல்றீங்க. आप बोलते हो शैतान पापी है, शैतान पाप है, शैतान के पास पाप है, शैतान के पास पाप है। ஒரு பெரிய பணக்காரன், एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, நேத்து वரைக்கும் பணக்காரன், कल तक धनवान व्यक्ति था, இன்னைக்கு அவனுடைய எல்லா பணம் வந்து எல்லாத்தையும் திருடின்னு போயிட்டாங்க. एक चोर आके उसके घर पे आके पूरे क्या धन संपत्ति को चोरी कर लिया। ஆனா அந்த பணக்காரன், लेकिन वो धनवान व्यक्ति, அவன் நார்மலா போற கடைக்கு அவன் போனா அவன் கடைக்காரன் என்ன நினைப்பான், जो धनवान व्यक्ति रोज दुकान में आता है, वो दुकान में आके खड़े होकर दुकान व्यक्ति क्या सोचेगा? அவன் என்ன பண்ண என்ன யோசிப்பாங்க, क्या सोचेगा? दुकान वाला क्या सोचेगा? அவனை ஏழைன்னு பிச்சைக்காரன் நினைப்பாங்க, क्या ये सोचेगा कि ये भिखारी है करके? அவன் பணக்காரன் தான் நினைப்பாங்க. वो तभी भी ये सोचेगा कि क्या है, ये धनवान व्यक्ति है। ஆனா அவன் நேத்து வரைக்கும் பணக்காரன், लेकिन कल तक वो धनवान व्यक्ति था, நைட் எல்லாத்தையும் திருடின்னு போயிட்டான். रात को पूरा चोर ने आके चोरी कर लिया। ஆனா அவன் கடையாண்ட போய் நின்னாலும் लेकिन दुकानदार के सामने खड़े होने के बाद भी அவன்கிட்ட பணம் இல்ல, उसके पास पैसा नहीं है, பாவம் இல்ல,
उसके बाद पाप नहीं है, ஆனா அவன் பேர் பணக்காரன். लेकिन उसका नाम है धनवान व्यक्ति। இப்ப தெரியுதுங்களா? आपको समझ में आ रहा है? பிசாசுக்கு பேரே பாவிதான். शैतान का नाम ही है पापी, ஆனா அவங்கட்ட பாவத்தை ஆண்டு பிடிக்கிட்டாரு. लेकिन उसके पास से यीशु मसीह ने पाप को छीन लिया। ஆனா பேர் பாவிதான். लेकिन उसका नाम पापी है, அவன் எப்பவும் பாவின் தான் கூப்பிடுவாங்க. उसको सभी लोग पापी करके बुलाते हैं, ஆனா அவங்கட்ட பாவம் உள்ள அனுப்புறதுக்கு பாவம் இல்ல. लेकिन उसके अंदर बेचारे के पास पाप नहीं है। அவனுடைய பாவத்தை கிரிகளை இயேசு அழிச்சிட்டாரு. यीशु मसीह ने हर एक पापों के कामों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर नाश कर दिया। அவங்கட்ட ஒன்றே இல்லை. उसके पास कुछ नहीं है, அவன் வஞ்சிக்கிறவன், वो धोखा देने वाला है, தந்திரமுள்ளவன், वो बहुत चतुराई है, ஏமாற்றுகிறவன், बहुत धोखाबाजी करने वाला உங்களை है, எப்படியாவது அதுக்குள்ள கொண்டு போகிறவன். आपको कैसे भी करके पाप में फंसाना चाहेगा। அவன தந்திரம் உண்டு. उसके पास है, तंत्र है। கடைசி காலத்துல अंतिम दिनों में கள்ள போதகர்கள், झूठे भविष्यवक्ता खड़े கள்ள होंगे, அப்போஸ்தலர்கள், झूठे प्रेरित लोग கள்ள खड़े होंगे, மேய்ப்பர்கள், झूठे शिक्षक கள்ள खड़े होंगे, சகோதரர்கள், झूठे सुसमाचार, யெகோவா விட்னஸ், यहोवा विटनेस இதெல்லாம் वाले, வருவாங்க. ये सब आने वाले हैं। உனக்கு வசனத்தை இல்லைன்னா அதுல போய் மாட்டிப்பீங்க. अगर आपके पास वचन नहीं, आप जाके फंस जाओगे, எப்படியாவது மாட்டிடுவாங்க. कैसे भी जाके फंस जाओगे। அவன் 2000 ரூபாய் கையில கொடுப்பான். वो 2000 आपके हाथ में देगा, ஆனா உனக்கு பைபிள் கொடுப்பான். वो बोलेगा आपको बाइबल देगा, உடனே சொல்லுவான் உங்க பாஸ் இதெல்லாம் தர முடியாது. वो बोलेगा आपके पास्टर्स को मैं क्या ये बाइबल नहीं दे सकता हूँ, 2000 ரூபாய் தர முடியாது. 2000 रुपए नहीं दे सकता ஆனா மாசம் மாசம் உனக்கு 2000 ரூபாய் தரேன். मैं, लेकिन तुझे 2000 हर महीने दूंगा। உடனே அதுல போய் சேர்ந்துருவாங்க. आप क्या करोगे? तुरंत जाके क्या है, वहां पे जाके जुट जाओगे, கவர்மெண்ட்ல 1000 ரூபாய் தான் தராங்க. क्योंकि गवर्नमेंट में 1000 रुपए मिलते हैं हमको, ஆனா வெளிய அவன் 2000 கொடுக்குறான். लेकिन ये जेहो विटनेस वाला कितना दे रहा है? 2000 रुपए दे रहा है। ஒரு வீட்ல 5 பேர் சர்ச்சுக்கு போனா अगर आपके घर में से 5 जन वो चर्च में जाएंगे तो कितने मिलेंगे आपको? 10000 ரூபாய் கிடைக்கும். 10,000 मिल जाएंगे। உடனே அங்க போயிடுவாங்க. आप तुरंत क्या जाओ, वो चर्च में जाके बैठ जाओगे। அங்க போறதுனால उस जाने के कारण நரகம் முக்கியம். पक्का है कि आप नरक जाओगे, ஆனால் நீங்க நித்தியத்துக்கு நீங்க பாவத்துல மாட்டிப்பீங்க. लेकिन आप क्या हो जाएंगे? पाप में जाके फंस गए, ஏன்னா சத்துரு சாத்தான் வஞ்சிக்கிறவன். क्योंकि शैतान बहुत ही चालाक रूप से आपको फंसाने वाला है। அதனால தான் மிக ஜாக்கிரதையா இருக்கு. इसलिए आपको बहुत सावधानी से रहना है। பாருங்க இயேசு உலகத்துல வந்தாரு. यीशु मसीह इस दुनिया में आया, யூதர்கள் இருந்தாங்க. यहूदी लोग भी थे, ஆனா யூதர்களுக்கு மத்தியில இயேசு நிறைய அற்புதம் செய்தார். यीशु मसीह ने यहूदी लोगों के, इजराइल लोगों के बीच में बहुत सारे अद्भुत काम किए। ஆனா இயேசு செய்த அற்புதத்தை அவங்க நம்பல. यीशु मसीह ने जो अद्भुत काम किए उसके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया, அவங்க பிதாவை தான் நம்புறாங்க. उन्होंने सिर्फ पिता के ऊपर विश्वास किया। அவங்களுக்கு தெரியும் उनको पता है, பிசாசு கூட அற்புதம் செய்ய முடியும். उनको पता, ये भी पता है कि शैतान भी अद्भुत काम कर सकता है। பிசாசு அற்புதம் செய்ய முடியாதா? क्या शैतान अद्भुत काम कर सकता है या नहीं कर सकता है? எகிப்துல मिस्र देश में மோசேவுக்கு தன்னுடைய கோலை போடுறான். मूसा ने अपना लकड़ी को नीचे डाला, அது சர்ப்பமா மாறுது. वो सांप बन गया। பார்வோன கோலை போடுறான். फारोन के लोग भी क्या है, लाठी को नीचे डाले, वो भी सांप அது बन சர்ப்பம் गया, மாறுது. वो भी सांप बन गया। அதுல எது ஒரிஜினல்? कौन सा ओरिजिनल था? जो मूसा के पास था। மோசே தான் ஒரிஜினல். मूसा के पास जो लकड़ी था वो ओरिजिनल था। அதுதான் அந்த கோலியை மிழுங்கிடுச்சு. उसने क्या किया? मूसा की लाठी ने क्या किया? सांप जो बन गया, उसने सारे फिरौन के जो लाठी थे सबको निगल लिया। ஆனா அது உலகத்துல வந்து காட்டினா लेकिन अगर दुनिया में जाके दिखाएंगे तो யாருக்குமே தெரியாது. किसी को नहीं पता रहेगा, வசனம் இல்லாதவங்களுக்கு தெரியாது. क्योंकि जिसके पास वचन नहीं है उनको भी पता नहीं चलेगा। அதனால தான் பிசாசுகிட்டே அற்புதம் இருக்குது. इसलिए शैतान के पास भी अद्भुत काम है, பாவம் இல்லைன்னா அற்புதம் செய்து விட்டுருவான். वो पाप के द्वारा अद्भुत काम कर देगा, ஆனால் அவனுக்கு முடியும். लेकिन उसके द्वारा हो सकता है। அவனால் ஆகாத காரியம் அவனால் இல்லை, எல்லாத்தையும் அவன் செய்ய முடியும். उसके पास भी सब कुछ कर सकता है वो, ஆனா அது ஏற்ற நேரம் வரும்போது தான். लेकिन ठीक समय आने के समय पर। ஆனால் இயேசு சொல்றாரு, लेकिन यीशु मसीह कहता है, நீங்க தேவ சமூகத்துல வரீங்க, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते நீங்க हो, சத்தியத்தை அறியுங்க. आपको सत्य को जानना है। சத்தியத்தை அறிந்தால் சத்தியம் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும். सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। நீங்கள் பிசாசை பார்க்காதீங்க. आप शैतान को मत देखिए, அவன் பலவீனம், वो पूरा निर्बल हो चुका है, அவன்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை. उसके पास कुछ भी नहीं है। அவர் இயேசு உரிந்து கொண்டார். यीशु मसीह ने उसको पूरा क्या कर दिया? छील दिया, उसको नंगा कर दिया। அவனால் இப்ப ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறான். वो बस दौड़ते रहता है अभी, நீங்க அதை பார்த்து பயப்படாதீங்க. उसको देखकर आपको डरना नहीं है। அதனால தான் எல்லா துரைதனங்களுக்கும், इसलिए सारे प्रधानताओं को, அதிகாரங்களுக்கும் सारे अधिकारियों को இயேசு தலைவரா இருக்கிறார். यीशु मसीह उसका मुख्य है। அன்பிற்குரியவர்களே, சத்திய வேத ஆராய்ச்சி வித்தியாசாலை தரிசன ஊழியம் 1. வடமாநிலத்தில் 300 திருச்சபைகளை உருவாக்குதல். 2. மாதம் ஒருமுறை எழுப்புதல் உருவாக்கும் எழுப்புதல் கூட்டம். 3. ஊழியர்கள், சபை தலைவர்கள், சுவிசேஷர்களுக்கென கருத்தரங்கு, அதாவது சத்திய வேத ஆராய்ச்சி நேரம். 4. டிவி ஊழியம். 5. பத்திரிகை ஊழியம். 6. CD DVD ஊழியம். 7. பவர் கேம்ப் அக்னி அபிஷேக முகாம். 8.
8 உபதேச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு ஊழியம். 9 நலிந்த குழந்தைகள் இல்லம். 10 24 மணி நேர ஜெப மையம். 11 சத்திய தேவ ஆராய்ச்சி கல்லூரி. 12 சிறுவர்கள் உருவாக்கும் ஊழியம். 13 மருத்துவ முகாம். 14 ஜெயில் ஊழியம். 15 கைப்பிரதி ஊழியம். 16 கிராம ஊழியம். 17 மிஷனரியை உருவாக்கும் ஊழியம். 18 நன்றி துதி ஆராதனை கூட்டங்கள். 19 சமூக நலப்பணிகள் ஊழியம். 20 இன்டர்நெட் மூலமாக ஆன்லைன் படிப்புகள். இது விரைவில் வரவிருக்கின்றது. 21 தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துதல். இதனுடைய நோக்கங்கள்: 1 கோடி சீடர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஜாமக்காரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி யுத்த வீரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஊழியர்கள் உருவாகுதல். தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார். புறப்பட்டு போக பிரயத்தனம் பண்ணி. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16:10. சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம், சுத்தர்கள் போகும் பாதையின் ஜீவம், உத்தம மார்க்கம் காட்டும் சத்திய வேதம். சத்திய வேதம்